Hare Krishna. Let's begin today's session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Anita ki jai, Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yesterday we talked about shlokas that Krishna narrated about when he comes and why does he come. So today we are going to continue with a very classic shloka which describes to us that knowledge if we have, we can get 100% entry into गोलोका वृंदावना. तो ऐसा क्या ज्ञान है जिसको पाने से या जिसको जानने से 100% गोलोक वृंदावन वास हमें मिलेगा. So before that, I wanted to address one question because this question was asked long back. I had not answered it. I had forgotten to answer it, and yesterday somebody sent me a reminder that this question is long due. The question was, many people pray to God out of fear. Now, is that a healthy thing? बहुत सारे लोग दुनिया में भगवान से भयभीत होके उनसे प्रार्थना करते हैं. क्या ये ठीक है? So answer for this question is, fear of God most often is healthy. तो भौतिक भगवान से भय और भक्ति रखना, भय रखना एक मतलब स्पिरिचुअल स्तर पे एक तंदुरुस्त चीज है. It is good because he will hesitate to do anything wrong because he has the concept that Lord is always watching. So yes, fear of God can be healthy in most of the situations. But our actions, ultimately, we must start acting. We must move from fear of God, that all our actions must be based from fear of God. We must move to the platform of our actions being on the basis of love for God. तो हमें उस स्तर पे पहुंचना है कि भगवान से भय से ऊंचा जाके हम भगवान के प्रेम से, भगवान को प्रेममय हम सेवा करने से हमारा सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए. So that is the answer for the question. It was long day. I'm very sorry for having missed out that question. So another question was asked almost at the same time. Therefore, I will take it up because that day I think I missed out the questions that were asked. Should we study history? Is there something that we should learn from history? The answer is yes. क्या इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए? इतिहास पढ़ना जरूरी है क्या? क्योंकि महाभारत और रामायण इतिहास है. तो इतिहास पढ़ने से क्या होगा? So the answer for that question is we must learn from remote history. तो जो अतीत है, जो इतिहास है, उससे हमें सीखना है. अच्छी चीज और जो बुरी चीज हुआ है उसको कैसे हम अपनी जिंदगी में ना लेके आए, ये सीखने के लिए इतिहास बहुत जरूरी है. And it helps us shape our current history. तो जब हम इतिहास से सीखेंगे
तो उससे हम आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है उसको हम उज्जवल कर सकते हैं। Because we will come to know the do's and the don'ts and we will be able to live a life of reality. ज्यादा हवा में उड़ने से अच्छा है कि हम रियलिटी को जाने। And another question was asked in the same session. 4 questions were asked. I missed out. I'm going to answer all 4. What is the use of spirituality? आध्यात्मिक जो जिंदगी है, आध्यात्मिक जो स्तर है, उससे क्या उपयोग है? So spirituality is meant to transcend. तो आध्यात्मिक जीवन से हमें भौतिक स्तर से ऊपर उठना है, ये सिखाएगा और ये हमें रास्ता दिखाएगा। एंड ना सिर्फ हमें ऊंचा उठाएगा, ऊंची स्तर पर उठाएगा, बल्कि वो हमें हमारे दुनिया को बदलने में सहायता करेगा अच्छे के लिए, फॉर द बेटर. इट हेल्प्स अस ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. दिस इज द रोल ऑफ spirituality. And another question was, Krishna is always projected as the enjoyer. क्या वो हर विश्व में जब आते हैं, no, not just in this universe, any other universe he comes, everywhere he is the enjoyer. He is the topmost supreme personality of Godhead. Is there any planet where he is not? The answer is no. Krishna is the supreme personality of Godhead in each and every universe. He is the master of all universes that exist. And he is the enjoyer. He is a trans-cosmic enjoyer. तो वो सारे विश्व का भोक्ता है, सारे विश्व का जो आनंद फाइनली जिसको मिलना है वो भगवान श्री कृष्ण है. These were the 4 questions I missed out on a particular day. So we will move on to today's shloka. As I told, most of the purports in chapter number 4 are very lengthy, so it will take us some time, at least I think 18 to 20 sessions to do chapter 4, which has about 40 shlokas. So shloka number 9. I will read one line and pause so that you can repeat it at your place without switching on your mic. Janma karma cha me divyam एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना. So Krishna is telling in this shloka that knowledge that gives us Goloka Vrindavana, that makes us eligible to enter Goloka Vrindavana. Just this much knowledge. What is that? One who knows the transcendental nature of my appearance and activities. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और मेरे कार्य लीला कर्म के बारे में वो दिव्य है ये जान लेता है, तत्वतः जैसे है वैसे वो जान लेता है. अपॉन लिविंग द बॉडी त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्याग करने के बाद कृष्ण ने क्या बताया था दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति. तो मृत्यु के बाद दूसरा देह मिलेगा, ये उन्होंने बताया था. लेकिन अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति. तो मतलब ये ज्ञान आपको अगर मिल जाएगा तो इस देह को जब आप त्याग देंगे आपका पुनर्जन्म नहीं होगा. अच्छा, पुनर्जन्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? मामेति सो अर्जुना, तो मेरे पास आ जाएगा. ही कम्स टू मी, ओ अर्जुना. ही अटेन्स माय एटर्नल अबोर्ड, ओ अर्जुना. सो दिस इज अ गारंटी दैट कृष्णा गिव्स. Earlier he said that once the body is finished, then a new body is obtained. Now somebody may ask, oh, is it going to be an inevitable thing? No. If we know this knowledge, then we will not get another material birth. So since we are eternal, then where will we go? What will happen to us? क्या होगा हमारा? हम सीधे कृष्ण लोक चले जाएंगे, कृष्णा के पास. मामेति सो अर्जुना.
So the Lord's descent from his transcendental abode is already explained in 6th verse. तो वो कब आते हैं ये वर्णन हुआ था पिछले 2 श्लोकों में. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead, जो भगवान के जन्म को दिव्य मान लेता है और जान लेता है, is already liberated from material bondage. ये केवल ये ज्ञान रहने से कि कृष्ण का सारे कार्य, लीला, जन्म, उनका अंतर्धान सब दिव्य है, केवल ये जानने से हम इस जन्म और मरण के चक्र से पार हो जाएंगे. We will, Prabhupada is telling, is already liberated from material bondage. And therefore returns, तो भौतिक बंधन से विमुक्त हो जाना का मतलब है हम वापस जाएंगे अपने सांविधानिक स्थिति, सांविधानिक स्थान गोलोक वृंदावन में. हम कब जाएंगे? Immediately after quitting this present material body. कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है. मतलब इस देह को त्यागने के बाद तुरंत हम चले जाएंगे कृष्ण लोक, कृष्ण के पास उनकी सेवा करने के लिए. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. लेकिन हम जानते हैं, शास्त्र बताता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है. असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम कोई ना कोई कार्य से बंध जाते हैं और इस भौतिक जगत में रह जाते हैं. लेकिन कृष्ण अभी हमें एक सुलभ उपाय बता चुके हैं. केवल उनके बारे में जानना, मतलब कृष्ण लीला के बारे में सुनना, कृष्ण लीला के बारे में पढ़ना, भगवद गीता को पढ़ना, भागवतम को पढ़ना, कृष्ण के सारे कथाओं के बारे में पढ़ना, सुनना, केवल ये करने से कृष्ण के पास हम वापस चले जाएंगे. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble. तो जो योगी है, जो निराकारवादी है, उनको भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन बहुत कष्ट सहने के बाद. भक्त को बहुत आसानी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, बल्कि वो इस देह में भी मोक्ष प्राप्त कर चुका होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो शरीर है ये कुछ दिनों के लिए रहने वाला है, और क्योंकि मैं भक्त बन चुका हूँ, मेरा अगला गति भगवान के घर को वापस जाना है. And in-person yogis get this moksha, liberation after many births. बहुत सारे जन्मों के बाद उनको ये मोक्ष मिलेगा. लेकिन भक्त को कृष्ण क्या बता रहे हैं? त्यक्त्वा देहम, पुनर्जन्म नहीं थी. इस देह के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप कृष्ण भगवान के पास वापस चले जाएंगे. This is the guarantee. I mean, anybody was listening to Bhagavad Gita today or any other day that they are going to listen on a platform where devotees are talking, where Srila Prabhupada is talking, that means they're definitely going to get liberated of the birth and death cycle at the end of this life. In fact, even now they can be in a liberated state. Even then, the liberation they achieve merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord is only partial. योगी और जो निराकारवादी हैं, उनको जो मोक्ष प्राप्त होगा वो ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित होगा. वो परमात्मा और भगवान के स्तर पे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि और ये मतलब अधूरा है. अधूरा है का मतलब क्या हुआ? एंड देयर इज रिस्क ऑफ रिटर्निंग अगेन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो इसमें क्या रिस्क है? वापस वो इस धरती पे या कोई भौतिक जगत में वापस आ सकते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं निराकारवाद से और योगी बन के. लेकिन जो भक्त बन के मोक्ष प्राप्त करते हैं या मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है. But the devotee simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, janma karma chane divyam, attains the abode of the Lord. Tattva deham punarjanma naiti smameti Arjuna. After ending this body and does not run the risk of returning again to the material world. तो ऑलमोस्ट ये खचित है कि वापस वो फिर भौतिक जगत में नहीं आएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकता. 100% जरूर चला जाएगा, लेकिन कुछ चांसेस रहेगा, नेक्स्ट टू नन. लेकिन हाँ, कुछ चांसेस रहेगा कि वो वापस भौतिक जगत में आ सकता है. कब आएगा? जब वो कृष्ण के
बारे में ईर्षा, एनवी जब उस पर डेवलप हो जाता है तब वो आएगा। भौतिक भक्त जब पुनर्गोलोकवास उनको मिल जाता है, उनके संविधानिक स्थिति में चले जाते हैं, ये परिस्थिति नहीं होता है, लेकिन it cannot be ruled out. So even when we go back to the spiritual world, we must always be constantly engaged in the service of the Lord. We cannot sit idle. In the Brahma Samhita it stated, the Lord has many forms and incarnations. तुमने पढ़ा था अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च. So, and although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same supreme person of Godhead. तो भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन वो सब भगवान का ही रूप है. One has to understand this fact with conviction. तो ये बात उनको दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, मतलब हृदय से उनको जानना चाहिए, कन्विक्शन से जानना चाहिए. Although it is incomprehensible to mundane scholars, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको ये बात समझ में नहीं आएगा. और एम्फेरिकल फिलोसोफर्स जो तर्कवादी हैं, जो भक्त नहीं है लेकिन तर्क निकालते हैं, इस जगत का सांख्या मुंह पूर्वक निकालते हैं, तो उनको भी मतलब ये बात समझ में नहीं आएगा. As stated in the Vedas, वेदास में बताया गया है कि एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा. इसका मतलब क्या है? वन सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, जो एक भगवान है, भगवान एक ही है, इज एटर्नली एंगेज्ड इन मेनी, तो मेनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, तो वो अपने कार्य को अनेक अवतारों में, रूपों में कर रहे हैं. इन रिलेशनशिप विद हिज अनलॉयड डिवोटीज, और वो कहाँ कर रहे हैं? अपने भक्तों के साथ वो लीला रचा रहे हैं. नित्य लीला अनुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा. So this Vedic version is confirmed in this verse of the Gita. तो ये जो वेदा में बताया गया है, तो गीता के इस श्लोक में इसका क्या बोलते हैं, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas, और जो ये बात को मान लेता है वेद शास्त्र के अनुसार, of the supreme person of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculation, अन्य तर्कवाद में वो अपना समय को व्यर्थ नहीं जो करता है, attains the highest perfection stage of liberation, तो वो मोक्ष का सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त कर लेता है. Simply by accepting this truth on faith, श्रद्धा से जब वो ये सत्य को मान लेता है, one can without a doubt attain liberation, तो कोई भी शंका के बिना वो मोक्ष के हकदार हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त भी कर लेता है. The Vedic version तत्वमसि is actually applied in this case. तो जो वेदा में दिया गया है तत्वमसि, जो जिसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, तत्वमसि का मतलब लोग निकालते हैं कि तत्वमसि, अच्छा मैं ही वो भगवान, but that's not the way it is. So we will read further. Anyone who understands Lord Krishna to be supreme, or who says unto the Lord, you are the same supreme Brahman, the personality of Godhead, is suddenly liberated instantly. तो भगवान कृष्ण को मान लेता है, वो उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है. इस भौतिक जिंदगी में, इस भौतिक देह में अभी उनका जीवन चलेगा, लेकिन मोक्ष का प्राप्ति उनको हो चुका है. और अर्जुन भी 10वें अध्याय में यही बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान. मान लेता है कि हाँ मैं मानता हूँ खचित रूप से कि हे कृष्ण आप ही भगवान हो. So what happens then? Consequently, his entrance into the transcendental association of Lord is guaranteed. तो सुनिश्चित है भगवान का संग उनको मिलना और गोलोक निवास उनको प्राप्त होना. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by following the Vedic assertion. तो ये वेदा में भी एक और श्लोक में दिया गया है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युम इति नान्य पंथ विद्यते अयनाय. इसका मतलब क्या है? One can attain the perfect stage of liberation from birth and death
simply by knowing the Lord, Supreme Person of Godhead. केवल भगवान के बारे में जानने से तो मोक्ष का सर्वोत्तम पद उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तमेव विदित्वा अधिमृत्यु इति न अन्य पंथ विद्यते अयनाय। ये इसका मतलब है। So anyone who does not understand Lord Shri Krishna as the Supreme Person of Godhead is surely in the mode of ignorance. और जो भगवान को, कृष्ण को भगवान जो नहीं मानता, नहीं जानता, वो अज्ञानी है। Consequently, he will not attain salvation. तो इसीलिए उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये जन्म मृत्यु के इस संसार में वो सड़ता फिरेगा। So to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, जैसे कि मधुमक्खी एक शहद की बोतल के बाहर को वो अपने जीभ से उसको मतलब चाट रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। ये गति होगा नास्तिकों का। और by interpreting भगवत गीता का मंडेन स्कॉलरशिप, या फिर जो भगवत गीता पढ़ लेता है और अपना तर्क उसमें निकाल लेता है, नॉट एज इट इज, यथा रूप नहीं, जो अपने ही कुछ रूप दे देता है, तो कभी भगवान को समझ नहीं पाएगा और उसको मोक्ष कभी मिलेगा नहीं। Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. तो ऐसे विज्ञानी, ऐसे ज्ञानी जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, तो उनको तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा। और हालांकि वो इस भौतिक जगत में ऊंचे ऊंचे पद में हो सकते हैं, भौतिक रूप में, but they are not necessarily eligible for liberation. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोक्ष के हकदार हैं। So such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. और जब वो धीरे धीरे बहुनाम जन्मनामन्ते नानवान मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत बहुत जन्म के बाद इन सबको मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे वो जान लेते हैं कि many scientists, I keep sending reports about scientists who speak about the existence of God. And these are all mature scientists, क्योंकि उनको वो जान चुके हैं, वो देख चुके हैं कि विज्ञान के पास सारे उत्तर नहीं है। विज्ञान सिर्फ ये बता सकता है कि चीजें कैसे चल रहा है, चीजों को कौन चला रहा है, ये विज्ञान नहीं बता सकेगा। ये हमारा परम विज्ञान भागवत और भगवत गीता ही बता सकता है। One should therefore cultivate Krishna consciousness. विज्ञानी हो, ज्ञानी हो, लेकिन हमें कृष्ण भावनामृत स्थिति में आना है, वरना हम विज्ञानी ज्ञानी होने के बावजूद अज्ञानी कहलाएंगे। And he must cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge. ज्ञान से, श्रद्धा भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। केवल श्रद्धा और आस्था रहने से काम नहीं चलेगा, हमें ज्ञान का प्राप्ति भी करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मन में होना चाहिए भगवान के बारे में, ये सब वेद ग्रंथ भगवत गीता भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो हृदय की मामला है। लेकिन भगवान खुद आपको बता रहे हैं, सारे गुरु वरिष्ठ लोग बताते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं। That's why we are holding these sessions and you're all attending these sessions. It is not simply for wasting time. It has a very specific purpose, because by knowing about Krishna, by attending sessions like this or any other sessions taken by devotees, by Prabhupada or predecessor acharyas, if you have access to it, then that is going to give us liberation. Again, when I say this, you must all understand. अच्छा, जनक प्रभु बता रहे कि उनके क्लास सुनेंगे तो मोक्ष मिलेगा। जनक प्रभु ये नहीं बोल रहे कि उनके क्लास सुनने से मोक्ष मिलेगा। जनक प्रभु ये बोल रहे कि उनका क्लास भगवत गीता यथारूप पे आधारित है, जो प्रभुपाद जी ने लिखा, इसीलिए आपको मोक्ष मिलेगा, ना इसलिए कि मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। Okay, this you should be very clear. So we will move further to shloka number 10. So shloka number 10
talks about attaining transcendental love for Krishna. कैसे भगवान के प्रति हम प्रेम को पा सकते हैं. So before we go into that territory, we will just talk about what we read just now. So why does Krishna descend? Krishna क्यों आते हैं? So he descends to civilize and spiritualize humanity. तो जो मानव कुल जब भटक जाता है, धर्म के मार्ग में चल जाता है, तो उसको सिविलाइज करने के लिए, उसको स्पिरिचुअलाइज करने के लिए कृष्ण भगवान आते हैं. एंड डिवोशन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग गॉड इनटू आवर लाइव्स. भक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल भगवान को हमारी जिंदगी में लेके आना है, बट इट इज मोर अबाउट एंटरिंग गॉड्स लाइफ. तो भक्ति का मतलब है हम भगवान की जिंदगी में जाने वाले हैं और उनके सहचरी बनके, उनके साथी बनके, उनके भक्त बनके, उनका सेवा, उनके लीलाओं में हम करेंगे. सो फ्रॉम दिस स्टेज where we are inviting God into our lives, we must go to the stage where we will become a part of God's life, part of God's leela, and become a part of His entourage. उनके सहचर्यों में हम एक जब तक ना हो जाए. So the unborn takes birth to save us from rebirth. तो भगवान कृष्ण अजन्म है, अज बोलते हैं उनको, लेकिन वो अजन्म होने के बावजूद जन्म लेते हैं, जन्म लेने का आभास हमें देते हैं, क्योंकि हम जो जन्म ले रहे हैं हमें इस जन्म मृत्यु से पार करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म होता है जो दिव्य है. तो द डिवाइन डिसेंट इज टू इंस्पायर द ह्यूमन असेंट. जो भगवान जब नीचे आते हैं, क्यों आते हैं? हमें ऊपर उठाने के लिए वो आते हैं. देखिए भगवान कितने दयालु हैं, हमें ऊपर उठाने के लिए वो खुद अपने आप नीचे आ जाते हैं. एंड कृष्णा डिसेंड्स नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट. तो कृष्ण केवल संरक्षण करने के लिए ही अवतार लेके नहीं आते हैं, बट ऑल्सो अलाउ हिज डिवोटीज टू टेक पार्ट इन हिज लीलास. लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी लीलाओं में उनके भक्त भाग ले, इसीलिए वो आते हैं खुद और अपने भक्तों के साथ वो लीला रचाते हैं. So what is the goal of spiritual life? So the goal of spiritual life, the question can be asked, what is the goal of spiritual life? The goal of spiritual life is to make spiritual life our ultimate goal. तो आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन ही हमारा लक्ष्य हो. मतलब हम आजीवन इस जन्म में या हमारे पूरे अस्तित्व में हम केवल भक्त बन के ही रहे. So very important, please listen to it again. The goal of spiritual life is to make spiritual life our ultimate goal. Such profound statement this is. So Krishna's pastimes are amusing and amazing. कुतूहलकारी है उसका लीला और अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण का लीला. So we will move to sloka number 10. We are reading from Bhagavad Gita as it is from Srila Prabhupada. All of you must read from Bhagavad Gita as it is, Yatharut, 1972 edition. The cover page looks like this. Do not buy the recent editions or any other edition after 1972 edition in any of the ISKCONs. You must take only the 1972 Macmillan edition. So let's read this sloka. I will again read one line and stop so that you can repeat. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावम् आगताः. So being freed from attachment, fear, anger. वीता राग भय क्रोध. तो दूर रखते हुए किस चीजों को? राग को, अटैचमेंट, भय को, क्रोध, एंगर को दूर रखते हुए, by keeping away or being freed from attachment fear and anger. Being fully absorbed in me, manmaya mam upashritaha. तो कृष्ण में लीन होते हुए और taking refuge in me, mam upashritaha, तो मुझ में शरण लेते हुए.
many persons in the past, bahavo gnana tapasa, became purified by knowledge of me. Uta madbhavamagata, केवल मेरे बारे में जानने से वो शुद्ध हो गए. कैसे? भगवान के बारे में जानने से, भगवान की लीला में भाग लेने से, भगवान की लीला के बारे में जानने से. And thus they all attain transcendental love for me. तो मद्भावमागतः, तो भगवान की प्रेम भी कैसे हम पाएंगे? भगवान के बारे में सुनने से. और कलयुग में आसान तरीका है भगवान के बारे में सुनना, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये भगवान के बारे में सुनना है. और भगवत गीता के बारे में सुनना, भगवत गीता सुनना, भागवतम सुनना, कृष्ण कथा सुनना, ये सब तरीके हैं भगवान की प्रेम को पाना. तो सिंपली बाय रीडिंग भगवत गीता, सिंपली बाय हियरिंग भगवत गीता, सिंपली बाय रीडिंग भागवतम, हियरिंग भागवतम, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, यू कैन गेट लव ऑफ गॉड. भगवान की प्रेम हमें मिल सकता है. If you all have attended our Mangal Arati, we read about 10 offenses and we all say that in order to achieve the desired success, which is Krishna Prem, तो हम ये सब जो offenses है अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम वो स्तर पे पहुंचना चाहते हैं जब हम कृष्ण प्रेम को पा सकेंगे. So by avoiding offenses and by doing these things, we can get love of God. So I described about it's very difficult for a person who is too mentally attached to understand the personal nature of the supreme absolute truth. So राग, भय, क्रोध ये सब हमारे अंदर रहेगा, भगवान को हम जान नहीं पाएंगे. तो वीत राग भय क्रोध होना है. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism, it is almost impossible for them to understand that there is a transcendental body which is imperishable. जो भौतिक जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुके हैं, उनको कभी ये जानने की समय भी नहीं मिलेगा कि एक आध्यात्मिक जीवन भी है. तो एक ऐसा भी देह है जो आध्यात्मिक देह है, तो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, जैसे कि इस शरीर क्षय हो जाता है. In a materialist concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. सच्चिदानंद ये भगवान का स्वरूप है, हमारा स्वरूप भी ओरिजिनली वही था. अब हम असत अचित निरानंद हो चुके हैं. That's what is being given by being in materially conditioned state. Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind and they are informed of the personal form of the Lord. तो जब भगवान के बारे में वो सुनते हैं, ऐसे लोग भौतिक जो स्तर पे है, तो वो भी यही सोचते हैं भगवान भी हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य है, उनका भी जन्म हुआ, उनका भी मृत्यु हुआ. अपरेंटली एक हंटर ने उनको तीर मारा और वो चल बसे. तो ये ऐसे जानते हैं. और उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां किया, उन्होंने भी, उनका भी बहुत सारे वीकनेसेस हैं, ऐसे वो मानते हैं. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. और ऐसे भौतिकवादियों को महत तत्व ही सबसे बड़ा चीज है. I mean, this entire cosmic universe is a matter of appreciation for them. Consequently, they consider supreme to be impersonal. इसलिए वो भगवान को भी निराकार मान लेते हैं. And because they're too mentally absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. क्योंकि वो भौतिकवादी में इतना बाद में इतना घुस चुके हैं, जब उनको बताएंगे कि इस देह के बाद भी एक ऐसा देह मिलेगा कि वो आध्यात्मिक देह रहेगा, आपका देह कंटिन्यू होगा, तो वो डर जाते हैं. अरे हम तो देह को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि देह ही सब, the body is the cause of all troubles. We want to end this body. And you're telling we'll get another body. No, we don't want. That's why we don't want to come in the line of bhakti. So generally they compare the living entities to the bubbles of the ocean which merge into the ocean. तो वो क्या समझते हैं? समुद्र में जो बुलबुले होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं, ऐसे आत्मा भी परमात्मा से मिल जाता है, एक हो जाता है. And that is the perfection of spiritual existence attainable without individual personality. तो हम अपना अस्तित्व को देते हैं और सब एक हो जाते हैं, ये उनका मानना है. This is a kind of fearful stage of life. तो ये भी भय का कारण है. तो कृष्ण क्या बता रहे? वीत राग भय क्रोध.
तो भय जब रहेगा मोक्ष नहीं मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे आपको। तो ये भय जब रहेगा तो आपको कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे? सो भय किस लिए है? बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, क्योंकि दिव्य ज्ञान उनके पास नहीं है। वो भक्त के माध्यम से भगवत गीता को कभी नहीं समझे, इसीलिए उनको भय है। जो भक्त के माध्यम से सुनते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको यथारूप भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है। So, we'll move further. Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry. और कुछ समय के बाद जब उनका मतलब दाल जो पक नहीं रहा है उनका तर्क का, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होता आदमी क्रोधित हो जाता है। तो संगत संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, जब काम का पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध में परिवर्तन हो जाएगा। और वो क्या करेंगे? Foolishly they conclude that there is no supreme cause. तो बोलते हैं अरे कुछ भगवान चीज है नहीं, ये सब बातें हैं। And that everything is ultimately what? सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। ऐसे वो तर्क निकालना स्टार्ट करेंगे। So such people are in a disease condition of life. तो भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि ये दिस इज वो बीमारी का अवस्था में है, आध्यात्मिक अवस्था में नहीं है। So, and some of them disbelieve in everything. और ऐसे वो मतलब बन जाते हैं कि वो किसी चीज पे श्रद्धा नहीं रहेगा, because they got disillusioned with everything. वो कोई भी चीज को मानते नहीं। And being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. और क्रोध करते हैं जब भक्ति के बारे में बात करते हैं या कोई सत्संग के बारे में बात करते हैं। This last class of men take to shelter of some kind of intoxication. धीरे धीरे वो मदिरापान, मद्यपान, धूम्रपान करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो इतना एजिटेटेड हो चुके होते हैं, उनको एक they want to escape from reality and therefore they take drugs, they do intoxication and their affecting hallucinations is sometimes accepted as spiritualism. और जब वो मादक वस्तुएं लेते हैं और जो उनको विजन्स मिलता है उनको वो स्पिरिचुअल विजन समझ लेते हैं, अंधे उसको वो आदत पड़ जाता है। So to get free from these three stages of material consumption of life, तो क्या है तीन stages of material consumption of life? One has to get rid of all the three stages of attachment to the material world: negligence of spiritual life, fear of spiritual personal identity, conception of void. तीन स्तर पे गुजरते हैं। पहले आध्यात्मिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, दूसरा ये समझते हैं कि भयभीत हो जाते हैं, अरे दूसरा देह मिलेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, और तीसरा सब शून्य है, इस स्तर पे आते हैं। तो to get free from these three stages of material conception of life, one has to take the complete shelter of the Lord. तो इस भय से ऊपर उठना है, भगवान श्री कृष्ण का शरण में आना अति आवश्यक है। गाइडेड बाय अ bona fide spiritual master, और उस स्तर पे पहुंचने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ेगा। आप सबके आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी हैं, क्योंकि आप उनके बोधन को सुन रहे हैं, उनके लिखित किताबों से जो बोधन हो रहा है उनको आप सुन रहे हैं, तो वो आपके दीक्षा गुरु बन गए हैं। So the last stage of devotional life is called bhava or transcendental love of God. जो अंतिम स्तर है भक्ति का, उसको भावा बोलते हैं, और उससे ऊपर प्रेम भक्ति का स्तर होता है। So we'll stop here. We have not completed the purport of shloka number 10. It's quite long. We will continue in the next session, which may be tomorrow or in the next week. I'll keep you informed. Thank you very much for attending these sessions. Don't be disturbed that not many people are attending. You are attending, that's all that matters. Many of them attend at their convenience on the YouTube channel when I post it, but you don't make that as your habit. You're having a good habit of attending then and there. Please continue. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nimesh ji, Veena Mata ji, Ramesh, Shalini Mata ji, Supti Mata ji.